نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں اور سوشل میڈیا سے منسلک میرے تمام سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صحابہ پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو ان تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ شاگردوں کو دیکھو تو استاد کے کمالات سامنے آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے سچے عاشق، آپ کے خدام اور آپ کے شاگرد تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر بڑی محنت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو سترہ کیا، ان کو سوارا، ان پر بڑی محنت کی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کی محبوب انبیاء کتنے گزرے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کتنے گزرے ہیں؟ نبی اور رسول میں فرق آپ جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ آپ یہ نکتہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی تعداد بھی 4 ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ اور بدری صحابہ کتنے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، 313۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور اللہ کے رسول نے دنیا سے جانے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے بھی عجیب نکتے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر اس طرح ایمان لائے جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا اور فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کفار کے سامنے اللہ نے ایک معیار رکھا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح انہوں نے میرے احکامات پر عمل کیے، میرے رسول کے فرامین پر انہوں نے عمل کیا، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
सहाबा को नबूवत का मकाम अता नहीं फरमाया। लफ्ज नबूवत से अल्लाह ने सहाबा को सरफराज नहीं फरमाया। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात याद रखें, जो मकाम, जो मर्तबा, जो बुलंदी, जो रिफअत अल्लाह ने अंबिया को अता फरमाई थी, वो मकाम, वो रुतबा और वो बुलंदी, वो रिफअत अल्लाह ने सहाबा को भी अता फरमाई। कुरान करीम में आप उठाए ना, एक नबी की ये शान होती है कि जो लोग उनकी इत्तिबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी की इत्तिबा से इंसान को कामयाबी से नवाजते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। ब्याइनी ही इसी तरह जो लोग सहाबा की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी कामयाबी और जन्नत की बशारत सुनाई है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए मेरे महबूब इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएंगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और इसके रसूल की इत्तिबा की वो बड़ी कामयाबी पा गया, उसको बड़ी कामयाबी मिल गई, गोया कि उसको जन्नत की बशारत सुनाई गई। बेआईनी ही इसी तरह मेरे दोस्तों, अब जरा दिल के कान खोलकर सुनिए, अल्लाह ने एक नबी की इत्तिबा पर कामयाबी की बशारत सुनाई है इंसानों को। अल्लाह ने एक नबी की इत्तिबा पर जन्नत की बशारत सुनाई है। बेआईनी ही इसी तरह जो लोग सहाबा की इत्तिबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी जन्नत और कामयाबी की बशारत सुनाई है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ इनकी इत्तिबा की, अल्लाह ने क्या दिया उनको, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अब देखे ना, ये शान किसकी थी कि अल्लाह उनकी इत्तिबा से कामयाबी अता फरमाते हैं, जन्नत की बशारत अता फरमाते हैं। ये शान किसकी थी? अंबिया की थी। बेआईनी ही इसी तरह ये शान और ये मकाम और ये रुतबा, ये बुलंदी, ये रफ़अत अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती है, खालिदीन फीहा अबदा, ये लोग वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और इसके रसूल की इत्तिबा की उसको बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिल गई। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि जो कामयाबी, जो मकाम और जो रुतबा अल्लाह तबारक व तआला अंबिया की इत्तिबा पर अता फरमाते हैं, बेआईनी ही वही मकाम, वही कामयाबी, वही बशारत अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की इत्तिबा पर भी और उनके नक्श कदम पर चलने पर भी अता फरमाते हैं। ये दलील कुरान से थी। अब जरा हदीस से इसकी दलील सुने, ताकि कुरान और हदीस के मज़ामीन यकजा हो जाए। आपने सुना है और इस बात का भी आपको इल्म है कि सहाबा ने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाई। उनकी बड़ी शान थी, उनका बड़ा मकाम है, अल्लाह ने उनको बड़ी कामयाबी और बड़ा रुतबा और बड़ी रिफ़अत और बुलंदी अता फरमाई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम को देखा। देखा तो बहुत सारों ने, अबू जहल ने भी देखा नबी अलैहिस्सलाम को, उतबा ने भी देखा, अबू लहब ने भी देखा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वतराहुम यंजुरून इलैक वहुम ला युबसिरून, वो तुम्हें नजर तो इस तरह आते हैं गोया कि वो तुम्हें देख रहे, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता। निगाहें पड़ रही हैं मगर नजर कुछ नहीं आता। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत की, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया कि उनको सहाबी बना दिया। और सहाबे के लिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन
मन रआनी औ रआ मन रआनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिन लोगों ने मुझे देखा या उनको देखा जिन्होंने मुझे देखा, जहन्नम की आग उनको नहीं छू सकती। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अंबिया को यह मकाम अता फरमाई कि जिन लोगों ने अंबिया की ज़ियारत की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम की आग उनको नहीं छुएगी। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ने सहाबा के बारे में फरमाया और रआ मन रआनी, जिन लोगों ने मेरे सहाबा के चेहरे पर नजर डाली, जिन लोगों ने मेरे सहाबा की दीदार की, जिन लोगों ने मेरे सहाबा को देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी जहन्नम से बरी कर दिया। इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा अपने दिलों में सहाबा की मोहब्बत से अपने दिलों को भर दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, जो लोग सहाबा पर तबर्रा करते हैं, जो लोग सहाबा पर लान तान करते हैं, उनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। जो लोग इन सहाबा से मोहब्बत करते हैं वो बिआइनिही मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी वजह से वो इन सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। और जो इन सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, दरअसल उनके दिल में बुग़्ज़ मेरे लिए था, इस वजह से वो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें, जिनके दिल में अल्लाह के रसूल के लिए बुग़्ज़ होती है वो इसका इजहार नहीं करते हैं, इसलिए वो अल्लाह के रसूल के खुद्दाम पर भौंकने शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो की तवस्सुत से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत से अपने दिलों को भर दें, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया था, अल्लाह ने उनको जो रिफ़ात और जो बुलंदी और जो रुतबा और जो शान अता फरमाई थी, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लोग इस वक्त सहाबा पर तबर्रा करते हैं, सहाबा के खिलाफ वो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत नसीब फरमाए। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से और अपनी शान से, अपने मर्तबे से अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।